کہ پاکستان میں عمران خان کی صورت میں 3 سال سے کیا عذاب مسلط ہے؟ کیا عمران خان جتنی نالائق حکومت کسی نے دیکھی ہے؟ جتنے بڑے قرضوں کے بوجھ کے تلے آج اس نے پاکستان کو دبا دیا ہے، اس کی مثال 73 سال میں نہیں ملتی۔ یہ وزیر اعظم مشرف کا پولنگ ایجنٹ تھا، ویسے یہ وزیر اعظم مودی کی پولنگ ایجنٹ تھا۔ آپ نے اس کو جواب دینا ہے۔ کٹھ پتلی کا یہ رائے ہو سکتا تھا، مگر حویلی کے عوام مودی کے لیے ووٹ نہیں مانگتے۔ بلاول باتیں کر رہے ہیں، مریم بات کر رہی ہے۔ بلاول کی صرف اتنی کارکردگی ہے کہ آپ ایک پرچی کے اوپر چیئرمین بنے ہوئے ہیں۔ مریم کی صرف اتنی کارکردگی ہے کہ وہ نواز شریف کی صاحبزادی ہیں۔ آج تک کشمیریوں کے لیے آپ کی جدوجہد کیا ہے؟ آپ نے تو کشمیر کا کبھی پہلے دورہ بھی نہیں کیا ہوگا۔ یہ الیکشن آئے ہیں تو آپ گھومنے پھرنے کے لیے کشمیر پہنچ گئے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آزاد کشمیر کے انتخابات جو ہیں وہ سیاسی جماعتوں کے لیے ایک اکھاڑا بن چکے ہیں، میدان بن چکے ہیں، اور تینوں بڑی جماعتیں ہیں، پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی اور نون لیگ جو ہے وہ آمنے سامنے دکھائی دیتی ہے۔ اور کیا اسلام آباد کی سیاست آزاد کشمیر کے انتخابات کے اوپر اثر انداز ہوں گے؟ یہ تو جس دن انتخابات ہوں گے اس دن ہی معلوم ہوگا کہ کس حد تک اسلام آباد کی سیاست جو ہے وہ آزاد کشمیر کے انتخابات کے اوپر اثر انداز ہو رہی ہے۔ اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے، ساتھ ہی ساتھ لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے بھی بات کریں گے کہ حکومت کا یہ کلیم تھا کہ سرپلس جو ہے وہ بجلی پیدا کی جا رہی ہے، جنریٹ کی جا رہی ہے ملک کے اندر، اور شاید اس کی ضرورت بھی نہیں تھی، لیکن آج کل پھر اتنی زیادہ جو لوڈ شیڈنگ ہے مختلف ملک کے علاقوں کے اندر، کچھ خبریں ایسی بھی ہے کہ جہاں پہ 10 سے 12 گھنٹے 14 گھنٹے تک جو ہے لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے۔ جو شارٹ فال ہے جو بتایا جا رہا ہے، جو منسٹری کی جو فگرز ہیں، تقریباً 5,000 سے 6,000 میگا واٹ کے قریب جو ہے وہ شارٹ فال ہے اس وقت سسٹم کے اندر۔ اس حوالے سے بھی بات کریں گے، اور ساتھ ساتھ احتساب کا عمل جو پچھلے 3 سالوں سے اس ملک کے اندر چل رہا ہے، جو کہ ایک متنازع احتساب کا عمل ہے، اپوزیشن اس کو انتقام کہتی ہے۔ نیب کا یہ دعویٰ ہے اور کلیم ہے کہ پچھلے 3 سالوں میں تقریباً 533 ارب روپے جو ہیں وہ ریکور کیے ہیں، وصول کیے ہیں، اور پچھلے سال جو ہیں بتایا جاتا ہے کہ تقریباً 323 ارب روپے جو ہیں وہ ریکور کیے ہیں نیب نے۔ یہ رقم جو ہے وہ کس طرح سے حکومت کی خزانے میں آیا اور کہاں پہ یہ خرچ ہوا، یہ تفصیلات بھی جو ہے حکومت کی بھی ذمہ داری ہے اور نیب کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ بتائے کہ یہ رقم جو ہے وہ کہاں پہ خرچ کی جا رہی ہے۔ ان تینوں موضوعات کے اوپر بات کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں سینیٹر سحر کامران صاحبہ، پاکستان پیپلز پارٹی کی آپ سینئر رہنما ہیں، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جی۔ فردوس شمیم نقوی صاحب، فارمر اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی اور سینئر رہنما ہیں پی ٹی آئی کے، بہت شکریہ آپ کا شمیم نقوی صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا جی۔ طاہرہ اورنگزیب صاحبہ، سینئر رہنما ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کی، رکن قومی اسمبلی کی، بہت سینئر اپنی پارٹی کی رہنما ہے، بہت شکریہ آپ کا طاہرہ صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ اور امیر عباس صاحب، سینئر اینکر پرسن، سینئر جرنلسٹ، ہمارے بھائی دوست، بہت شکریہ امیر عباس صاحب آپ کا بھی، آپ نے ہمیں جوائن کیا جی۔ سحر صاحب، آپ سے بات کا آغاز کرتے ہیں کہ یہ تاثر ظاہر ہے کہ الیکشن کے اندر تو اس طرح کی تقاریر جو ہیں پرجوش قسم کی جو بلاول صاحب کر رہے ہیں، کل بھی انہوں نے پہلے تو صرف عمران خان صاحب ان کی حکومت ہدف ہوتی تھی، اب دکھائی یہ دے رہا ہے کہ گلگت سے یہ انتخابات جو ہیں وہ ڈیفرنٹ ہے، وہاں پہ صرف پی ٹی آئی کو نشانہ بنایا جا رہا تھا دونوں جماعتوں کی جانب سے، یعنی نون لیگ اور پیپلز پارٹی، لیکن بلاول صاحب جو ہے وہ مسلسل نون لیگ کو بھی زیادہ، یعنی پی ٹی آئی سے لگتا یہ ہے کہ وہ نشانہ بنا رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اپوزیشن کے خلاف ہی اپوزیشن کیوں کر رہی ہے؟ یہ تاثر ابھر کے سامنے آ رہا ہے۔ بہت شکریہ وحید۔ دیکھیے، بات یہ ہے، آپ نے خود ہی کہا کہ انتخابات ہیں اور ہمارا کوئی انتخابی اتحاد نہیں ہے۔ ہمارے کینڈیڈیٹ ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑ رہے ہیں، دونوں پارٹیز کی اپنی اپنی آئیڈیالوجی ہے، اپنا اپنا مینیفیسٹو ہے۔ جو اپوزیشن کا اتحاد ہوتا ہے وہ کچھ نکات پر ہوتا ہے اور ڈیفینیٹلی اس کے اوپر ہم ساتھ بھی ہوتے ہیں، اور جہاں پر ہمیں ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑنا ہے ہماری ٹوٹلی ایک ڈفرینٹ آئیڈیالوجی ہے۔
जहाँ तक कि मैनिफेस्टो हमारे बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। तो डेफिनेटली जब हम अपने कैंडिडेट की कैंपेन करेंगे तो उसके अंदर जो भी मुखालिफ पार्टीज खड़ी होंगी वो तो उनका जिक्र भी होगा और उनके बारे में बात भी होगी। लेकिन ये जिक्र मैंने जैसे कहा कि गिलगित में हमें दिखाई नहीं दे रहा था, ये बाय इलेक्शंस के अंदर हमें दिखाई नहीं दे रहा था। देखिए गिलगित में आप देखिए उस वक्त पीडीएम भी इंटैक्ट थी और बहुत सी जगहों पे हम जो है वो एक दूसरे को सपोर्ट भी कर रहे थे। मगर आज जो है हम इनफरादी तौर पर तमाम, आपने कराची में देखा कि पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट के अगेंस्ट जो है नून लीग के कैंडिडेट भी थे, पीटीआई के कैंडिडेट भी थे, एमक्यूएम के कैंडिडेट भी थे, पाकिस्तान ज़मीन पार्टी के कैंडिडेट भी थे। तो ये तो डिपेंड करता है कि इंतखाबी मरहला कैसे चल रहा है। लेकिन मैं एक बात ये कहूंगी कि मैंने बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की तमाम तकारीर सुनी है, कहीं पर भी उनकी गुफ्तगू में, उनके लहजे में, उनके अल्फाज के चुनाव में ऐसी कोई बात नहीं है जिसको आप ये कहें कि किसी के ऊपर जाती अटैक है या इखलाक से या कोई इस तरह की चीज है जिससे, हाँ सियासी बातें हैं, सियासी अटैक है, सियासी गुफ्तगू है और वो होनी भी चाहिए। उसके बगैर तो इलेक्शन का वो कोई रौनक भी नहीं होगी। ठीक है ये पीपल्स पार्टी का, क्योंकि पीपल्स पार्टी का कयाम भी कश्मीर कॉज पे हुआ है। नहीं, लेकिन वो पहले बिल्ली और शेर का तस्करा इतना नहीं होता था, पहले पांव पड़ने का तस्करा इतना नहीं होता था, अब वो जो है वो पुरजोश तरीके से हमें दिखाई दे रहा है। वही इस पर आप मुझे एक कमेंट करने दें जी प्लीज। देखिए पाँव पड़ने का तस्करा ये पीपल्स पार्टी ने नहीं किया, ये शहबाज शरीफ की स्टेटमेंट थी जिसको खुद शाहिद खान अब्बासी साहब ने कहा कि उनको ये स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए थी। तो मैं ये सब कहूंगी कि सबसे पहले अपनी जमात के अंदर तय कर लें कि किसको क्या स्टेटमेंट देनी चाहिए और क्या नहीं देनी चाहिए। अगर आपकी कोई स्टेटमेंट है और उसको हम रेफर कर रहे हैं तो हमारे पास जवाब है, क्योंकि बजट के दौरान आपकी एब्सेंस हमें कुछ अच्छी नहीं लगी। जी ताहिरा औरंगजेब साहिबा, ये क्या वजह है कि आज अपोजिशन जो है वो अपोजिशन से लड़ रही है? तो सेनेट के इंतखाबात के बाद मुसलसल हम देख रहे हैं पिछले तकरीबन 3 माह से, अब ये पाँव पड़ने वाला जो मामला था, डू यू थिंक कि शहबाज शरीफ साहब की जो मुफाहमत वाली जो सियासत थी वो फिर पीछे चली गई है? कश्मीर के इलेक्शन के अंदर मरियम साहिबा जो हैं, जिनका ये कहा यह जा रहा था कि वो जिस तरह से पहले उन्होंने शहबाज शरीफ साहब जब तक जेल में रहे वो एक ऐसी सियासत कर रही थी जो कि एक कन्फ्रंटेशन की तो हम नहीं कहते लेकिन एग्रेसिव सियासत कर रही थी, कुछ अर्सा फिर खामोश रही, अब दोबारा से सामने आ गई हैं। वजह क्या है? मामलात जो हैं, जैसे कि बिलावल साहब ने कहा जी कि आप पाँव पड़ने वाली सियासत और वजारत उस्मा जो है वो आप लोग चाहते हैं, तो अब मामलात कहाँ पे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमें मेरे ख्याल में फोकस रखना चाहिए कश्मीर इलेक्शन पे। अपोजिशन जो है वो अपोजिशन के साथ नहीं लड़ रही, बल्कि हर सियासी जमात का ये हक है कि वो पाकिस्तान की किसी भी जगह के इलेक्शन में अपने उम्मीदवार को नामजद करे और उसकी कैंपेन भी चलाए। अब सिर्फ आज़ाद कश्मीर के अंदर PMLN और PPP के कैंडिडेट्स नहीं हैं, वहाँ मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार भी हैं, वहाँ PTI के उम्मीदवार भी हैं, वहाँ तहरीक लब्बैक पहली मरतबा इलेक्शन लड़ रही है, वहाँ जमात इस्लामी के उम्मीदवार भी हैं। तो आप सिर्फ 2 पार्टियों को क्यों सामने फोकस करते हैं कि PPP और PMLN जो है वो आपस में मेन पार्टियां तो ये बाकी भी हैं। सियासत तो सियासत होती है और इलेक्शन होता है। इलेक्शन में हर सियासी जमात का ये अवलीन हक है कि वो अपने उम्मीदवारों को नामजद करे, उनकी कैंपेन भी चलाए। और उन आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन बड़े अहम इलेक्शन है आजकल के हिसाब से, क्योंकि जब से इंडिया ने, मोदी साहब ने मकबूजा कश्मीर के अंदर अपनी पॉलिसियां एकदम से एग्रेसिव की हैं और हिंदुओं को ले जाके मकबूजा कश्मीर के अंदर बसाने का प्रोग्राम जो उनका था उस पर वो अमल पैरा है और मुस्लिम जो आबादी अक्सरियत में थी उसको अकलियत में बदलने का उनका जो जब से काम शुरू हुआ है, तो आज़ाद कश्मीर की अहमियत बहुत बढ़ गई है। इसी लिहाज से आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन जो हैं उनकी भी अहमियत पहले की निस्बत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो PMLN जो है उनके तो पहले भी गवर्नमेंट है आज़ाद कश्मीर में और उनके उम्मीदवार भी खड़े हैं, बल्कि उनके 2 कैंडिडेट्स जो हैं जो वो 2-2 हलकों में खड़े हैं। फारूक हैदर साहब खड़े हैं जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे, वो मुजफ्फराबाद में 2 हलकों से खड़े हैं। शाह गुलाम कादर साहब नीलम वैली से 2 हलकों से खड़े हैं। तो ये तो अहमियत की बात है कि इलेक्शन इतना अहम है
کہ اس میں وہ پارٹیاں بھی پہلی دفعہ جا رہی ہیں تحریک لبیک نہیں، لیکن طاہرہ صاحبہ جیسے میں نے سحر صاحبہ سے پوچھا تھا کہ گلگت کے اندر اپوزیشن آپس میں اتنی اگریسو نہیں تھی، the target was پی ٹی آئی عمران خان صاحب. یہاں پہ ہمیں کچھ تھوڑا سا ڈفرینٹ، اور انہوں نے اس کا ریزن بھی بتا دیا کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ انٹیکٹ تھی. دیٹ واز دا ریزن. نہیں، پی ڈی ایم سے تو پیپلز پارٹی نکل گئی اب، کیونکہ جب پی ڈی ایم سے پیپلز پارٹی نکل گئی تو وہ پی ڈی ایم کے فیصلوں کی پابند بھی نہیں رہی. تو جب گلگت بلتستان کا الیکشن ہو رہا تھا تو پی ڈی ایم جو ہے ایک پیج پہ تھی اور ایک منشور پہ تھی، اسی لیے ان کا ہدف صرف پی ٹی آئی تھی. اب پیپلز پارٹی چونکہ پی ڈی ایم سے الگ ہو چکی ہے، اس لیے ان کا اپنا بھی سٹانس ہے، ان کے اپنے بھی نظریات ہیں، ان کی. لیکن آپ کا ہدف پی ٹی آئی پیپلز پارٹی نہیں ہے، آپ کا ہدف صرف پی ٹی آئی ہے. دیکھیں، ہمارا ہدف جو ہے انشاءاللہ تعالی کشمیر کا الیکشن جیتنا ہے. ٹھیک ہے. ہمارے سامنے انڈیا کی بھی وہ فسطائیت حکومت کھڑی ہے جنہوں نے کشمیریوں کا اس عرصے میں جب سے مودی کی حکومت بنی ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں جو مظالم کی انتہا ہے اس کی انتہا ہو چکی ہے. بالکل ٹھیک ہے. میں آپ کی طرف آتا ہوں نقوی صاحب سے. ہمارے دیگر تمام پولیٹیکل پارٹیز بھی ہدف ہیں. ہم صرف پی ٹی آئی کو کیٹر نہیں کر رہے، ہمارے کینڈیڈیٹس جہاں جہاں کھڑے ہیں ہم ان کی کیمپین. بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. میں آپ کی طرف آتا ہوں. نقوی صاحب کو میں چاہوں گا کہ انکلوڈ کر لوں. نقوی صاحب، پہلا جلسہ جس کا مظفر آباد میں ہوا ہے، ہمارے سامنے تمام پولیٹیکل پارٹیز کے نمائندے ہیں. ہم اپنے کینڈیڈیٹ کے لیے ہر طرح کی کیمپین چلا رہے ہیں. بالکل صحیح ہے، ہر پارٹی کے مد مقابل. بالکل صحیح ہے. نقوی صاحب، مریم صاحبہ نے کہا ہے کہ 3 سال سے عذاب مسلط ہے وزیر اعظم صاحب کی صورت میں، اور ساتھ انہوں نے کہا کہ جو قرضے انہوں نے 3 سال میں لیے ہیں وہ 73 ایئرز میں اس ملک نے لیے تھے. سو اس طرح کی پرفارمنس کے ساتھ what are the challenges in Azad Kashmir to your party, please? The same challenges of Gilgit Baltistan. یہی تھا، وہاں بھی جیتے، انشاءاللہ یہاں بھی جیتیں گے. اور آزاد کشمیر کا تو ایک عجیب ریکارڈ ہے. مجھے نہیں پتا اس کے پیچھے وجوہات کیا ہیں، لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ماضی میں جس کی اسلام آباد میں حکومت، اسی کی آزاد کشمیر میں حکومت. تو یہ یا تو آزاد کشمیر کے لوگ جو ہیں بڑے سمجھدار لوگ ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے بہتر یہی ہوتا ہے کہ وہ اسلام آباد سے اپنے آپ کو الائن کریں، اسی لیے وہ ووٹ دیتے ہیں. اس لحاظ سے تو ہم اور زیادہ پر امید ہو گئے. اول تو ہم ایک پاپولر پارٹی ہے، اس لیے ہمیں پوری امید ہے. دوسرے یہ ماضی کی تاریخ بھی یہ دکھاتی ہے، کیونکہ ہم اسلام آباد میں حکومت کر رہے ہیں، ہم سمجھتے ہیں ہمارے چانسز بہت برائٹ ہیں کہ آزاد کشمیر میں بھی حکومت بنے گی. جہاں تک پرفارمنس کا تعلق ہے، آج میرے خیال سے میں اخبار میں ایک سروے دیکھ رہا تھا کووڈ سے پوسٹ پینڈیمک ریکوری کے اوپر. تو 50 ملکوں کا سروے تھا، اس میں پاکستان 3رے نمبر پہ تھا، اور اس سے اوپر جو 2 ملک تھے وہ ہانگ کانگ اور نیوزی لینڈ تھے، اور دونوں کی آبادی 1 کروڑ سے کم ہے. کروڑ سے زیادہ آبادی والے ملکوں میں پاکستان جو ہے نمبر 1 ہے. اچھا، آپ اسی لحاظ سے جو شرح ترقی ہے، اگر آپ ہندوستان کو دیکھیں تو -7.75 تھی، ہماری پازیٹو 4 کے قریب آ رہی ہے. ہماری لارج اسکیل مینوفیکچرنگ جس اسکیل پہ بڑھی ہے وہ تاریخی ہے. ہماری ریمیٹنسز تاریخی ہے، ہمارے بانڈز کی اٹریکشن تاریخی ہے. ہمارے یہ بات جو قرضے کی بات کرتے ہیں، اس کے اندر قرضے کی وجوہات کو بھی دیکھنا پڑتا ہے، اس لیے وہ قرضے لیے نہیں جاتے. پاکستان کے اوپر اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ 3 ٹریلین جو ہے وہ ڈیٹ سروسنگ میں، 3 ٹریلین پلس ڈیٹ سروسنگ میں جاتا ہے. اور ٹیکس کلیکشن جس ریکارڈ طریقے سے ہم بڑھا رہے ہیں وہ ماضی میں کبھی اتنا بڑھا بھی نہیں، اور کلیکشن بہتر ہوئی ہے. لیکن آپ کی ٹوٹل ریونیو کا تقریباً آدھے سے زیادہ رقم جو ہے وہ ٹیکس میں چلی جاتی ہے، صرف وہ ڈیٹ سروسنگ میں چلی جاتی ہے. 2 مت لے لیں نا آپ کہ 57 بجٹ گوز ٹو پروونسز اور ڈیٹ سروسنگ، تو آپ کی ڈیفیسٹ پہلے ہی شروع ہو جاتی ہے. ڈیفینس اس کے بعد ہے، رننگ آف دا گورنمنٹ اس کے بعد ہے، اور پی ایس ڈی پی اس کے بعد. تو ایسے حالات میں اس ملک کو قرضے سے نکالنے کے لیے آپ کو اور قرضہ لینا پڑ رہا ہے کہ ترقی کر سکے، آمدنی بڑھا سکے اور اس آمدنی سے واپس کر سکے. دوسرے قرضے بڑھنے کی جو آپ کا ڈالر بیسڈ ڈیٹ تھا، وہ ڈیویلیویشن جو کرنی پڑی، اس کے اوپر تمام اکانومسٹ کا اتفاق ہے. خود مفتاح اسماعیل صاحب نے، اسحاق ڈار نے
रखा था उसको डिवैल्यू किया, फिर केयरटेकर ने डिवैल्यू किया, फिर फर्दर डिवैल्यू तरीके इंसाफ के आने और फिर कुछ। तो इसका मतलब है नकवी साहब कि ये जितनी भी ये जो फिगर्स जी, ये इकोनॉमिक इशारिये जो आप बता रहे हैं, ये सारे के सारे कश्मीरी अवाम को आप लोग कन्वे कर लेंगे अपनी स्पीचेस के अंदर, कैंपेन के अंदर, सो दे शुड बी कन्विंस्ड कि जी यू आर द पार्टी विच शुड बी वोटेड फॉर दिस इलेक्शन, दिस व्हाट यू आर सेइंग। मैं समझता हूँ हमारा जो पॉपुलर प्रोग्राम रहा है वो हमारा हेल्थ कार्ड रहा है, वो हर जगह सराहा जाता है, और जो हमने कोविड के दौरान एहसास इमरजेंसी कैश दिया है और उससे जो इकोनॉमी को बैठने नहीं दिया और इकोनॉमी की जो रिकवरी हुई है वो सारी दुनिया भी सराहती है और सारे पाकिस्तानी भी। बिल्कुल सही है। मैं आपकी तरफ आता हूँ अमीर अब्बास साहब, डू यू थिंक के दोनों जो बड़ी जुमातें हैं, बाकी जुमातों का भी तस्करा तायरा साहबा ने किया, डेफिनेटली दे आर कंटेस्टिंग द इलेक्शन, तो ये डिवाइड होंगी, तकसीम होगा वोट, तो उसका बेनिफिट जो है, डू यू थिंक पीटीआई इज गोइंग टू गेट द बेनिफिट? बहुत शुक्रिया वहीद साहब। देखें, जैसे नकवी साहब फरमा रहे थे कि आजाद कश्मीर के इलेक्शन का ये मिजाज है शायद कि वो उसके साथ खड़ा होता है जिसकी मरकज में हुकूमत हो। मैं समझता हूं कि जो डेमोक्रेसी की स्पिरिट है ये उसके खिलाफ है, ये कोई फखर की बात नहीं है। अच्छा, ये मिजाज पहले तो सिर्फ आजाद कश्मीर का था, लेकिन माशाल्लाह हमारे इन सियासतदानों ने गिलगित बल्तिस्तान का मिजाज भी यही बना दिया है, जब से वहां पर इलेक्शन होकर और सूबाई एक असेंबली वजूद में आना शुरू हुई है। यानी वहां भी जब पीपल्स पार्टी की मरकज में हुकूमत थी तो वहां पीपल्स पार्टी जीते, मेहदी शाह चीफ मिनिस्टर थे। उसके बाद फिर नून लीग की मरकज में हुकूमत थी तो वहां नून लीग जीती। अब पीटीआई की मरकज में हुकूमत है, वहां पीटीआई जीती है। डेमोक्रेसी की स्पिरिट क्या है? डेमोक्रेसी ये कहती है कि आपका जो वोट है वो हर तरह के दबाव और हर तरह के इन्फ्लुएंस से आजाद होना चाहिए। अगर आपका वोट किसी भी दबाव या इन्फ्लुएंस में है, किसी ल्यूक्रेटिव डील के अंडर है, इवन देन ये डेमोक्रेसी नहीं। यानी आपका वोट जात पात के असर के अंदर आ जाए, मसलक के फिरकावारियत के असर के अंदर आ जाए, लिसानियत के असर के अंदर आ जाए, इलाकायत के असर के अंदर आ जाए, या ये जो वफाकियत है इसके असर के अंदर आ जाए, तो भी ये जमहूरियत के उसूलों के खिलाफ है। तो मैं तो समझता हूं कि ये तो शर्मनाक बात है। ये हमारे लिए किसी भी तौर पर काबिल फख्र बात नहीं है कि हमारे आजाद कश्मीर के लोगों को और गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को ये एहसास हो गया है कि हमने वोट किसी को नहीं देना, भले यहाँ पे आके कोई जितना बड़ा भाषण सुना दे, मंशूर का कुछ भी कर दे, हम उसको वोट देंगे जिसकी मरकज में हुकूमत है, क्योंकि हम मरकज के ताबे हैं, हम मरकज के गुलाम हैं। मरकज से एक वजीर उठता है जो वायसराय बनकर हम पर हुक्मरानी करता है, मरकज से हमारी ब्यूरोक्रेसी आती है, मरकज से हमारे लिए अहकाम जारी होते हैं। ये डेमोक्रेसी है? ये तो शैम डेमोक्रेसी है। हमने उन लोगों को किसी किस्म का, हमने ना उनको एडमिनिस्ट्रेटिव राइट दिया, ना हमने उनको पॉलिटिकल राइट दिया, ना हमने उनको फाइनेंशियल राइट दिया, ना हमने वहां पे लोकल गवर्नमेंट सिस्टम एस्टैब्लिश होने दिया। हमने तो उनको कमी बना के रखा हुआ है। तो मैं समझता हूं कि पहली बात तो ये कि ये आजाद वोट नहीं है गिलगित बल्तिस्तान को और आजाद कश्मीर के लोगों का। वो मोहताज है हमारे, उन्होंने हमें वोट देना है। आज यहाँ इमरान खान साहब है, इनको वोट मिलेगा। माजी में जिन की हुकूमत रही उनको वोट मिलता रहा। अब जहां तक बाकी इसके अलावा जो फैक्टर्स हैं उसमें देखें, जो आजाद कश्मीर है वहां पे जो बरादरी का वोट है वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। वहां राजे हैं, सरदार हैं, जो बाकी कम्युनिटीज हैं। वैसे तो ये तकरीबन एक तरह से क्लासलेस सोसाइटी बन जाती है आजाद कश्मीर भी और गिलगित बल्तिस्तान भी। यहाँ पे किसी के बड़े का कोई फर्क नहीं समझा जाता। लेकिन जब वोट की बारी आती है तो जो बरादरियां हैं, जो ये कम्युनिटीज हैं, ये इकट्ठी हो जाती है और ये उसको वोट दे। जैसे फारूक हैदर साहब वो राजा है, राजा फारूक हैदर, इसी तरह से बाकी लोगों की भी अपनी कम्युनिटीज हैं। तो मैं समझता हूं कि इसके पॉलिटिकल पार्टीज विल नॉट हैव दैट मच यू नो से इनटू द वोटिंग सिस्टम। जिस तरह से आप कह रहे हैं कि बरादरी जो है उसका ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है, जिसकी वजह से लोग फिर अपनी बरादरी के लोगों को वोट देते हैं। मैं एक शॉर्ट ब्रेक अगर इजाजत तो ले लूं नाज़रीन, यहाँ पे एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं क्विकली, और ब्रेक के बाद जो है वो प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ रहिएगा। बैक नाज़रीन, इस सेगमेंट में हम बिजली के हवाले से बात करेंगे। कसीरुल जहद मसला है ये। सहर साहिबा, मुझे ये बताइएगा कि मौजूदा हुकूमत जो है
वो ये कहती है कि जो भी एनर्जी सेक्टर के चैलेंजेस हैं उसमें पिछली हुकूमतों का बहुत ज़्यादा इसके अंदर हाथ था, और आप लोगों ने भी महंगी जो है बिजली उस वक्त खरीदी थी, जिसका आज इस हुकूमत को भुगतना पड़ रहा है सारा खमियाजा। क्या कहेंगी? बात यह है कि मैं तो उस दिन की मुंतज़िर हूँ जब ये हुकूमत जो है वो पिछले और आगे से हटके हाल में भी आए, कुछ ये भी बताए कि जी आपने पिछले 3 साल में क्या किया, कुछ ये भी बताए कि ये जो उनकी बुरी कारकर्दगी है उसका असरात आवाम पे क्या आ रहे हैं। क्या सिर्फ झूठ बोल बोल के, झूठा बयानियां बनाकर जो है क्या आवाम को मुतमईन किया जा सकता है? आप जो मर्जी फिगर्स दे दें, आप ये देखें एक आम आदमी की जिंदगी कैसे गुजर रही है। यानी हम तो देख रहे हैं कि गर्मियों में भी गैस नहीं आ रही, हम गर्मियों में बिजली तो चले, लोड शेडिंग खत्म हुई थी, कुछ लोड शेडिंग दोबारा शुरू है। तो ये क्यों नहीं कहते कि जी हमारी मिसमैनेजमेंट है, ये आपने जो है वो 4 फाइनेंस मिनिस्टर क्यों बदले, आपके रोड मिनिस्टर क्यों बदले जाते, आपसे चीजें क्यों नहीं संभलती, वो आपके माफिया किधर गए। बिल्कुल अभी तो मैं समझती हूँ कि फिर आप पिछले सेगमेंट में भी हम जो है वो पीपल्स पार्टी और PMLN की बात करते रहे, तो फिरदौस शमीम नकवी साहब बड़े सुकून में थे और बड़ी अच्छी बात की अमीर अब्बास ने कि ये जो एक परसेप्शन है ना कि जी जिसकी हुकूमत है सेंटर में वही बनाएगा गिलगित बल्तिस्तान में या कश्मीर में हुकूमत। देखें गिलगित बल्तिस्तान में वोट सबसे ज्यादा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के थे। अगर हम सिर्फ जमहूरियत की कंटिन्यूटी के लिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हम आपकी हर हेरा फेरी को पे खामोश हैं और ये नहीं चाह रहे कि सिस्टम को कोई नुकसान पहुंचे, तो उसको आप हमारी कमजोरी मत समझें, उसको आप हमारी सिंसियरिटी समझें टुवर्ड्स द डेमोक्रेटिक सिस्टम। ठीक है, हम आपका मुकाबला कर रहे हैं, लेकिन आप ये देखें कि इनकी संजीदगी का आलम क्या है। जहां पे अली अमीन गंडापुर जैसे मिनिस्टर हो, आपने वो सेगमेंट खत्म कर दिया, उस वायरल वीडियो की बात तो की नहीं, जहां पे वो पहले भी बोलियां लगा रहे थे कि जी इतने वोट मिलेंगे तो इतने करोड़ होगा, और अब नोटों की गड्डियां बांट रहे हैं। तो ये देखें ये किस किस्म का जो है ये मैसेज दे रहे हैं कश्मीर में, और किस किस्म का मैसेज दे रहे हैं आलमी दुनिया को। तो मैं ये समझती हूँ कि अगर आपके झूठे बयानिए से हुकूमतें चल सकती तो हमें चलती हुई नजर आती। आपके एहसास में एहसास नहीं है, आपकी कारकर्दगी में सिर्फ। ठीक है सहर साहब, टाइम थोड़ा सा इशू है हमारे पास टाइम का आज। जी ताहिरा साहब से मैं पूछ लेता हूँ। जी ताहिरा साहब, ये जो पीपल्स पार्टी की एक मिनट वही सिर्फ ये होता है, पीपल्स पार्टी की इसलिए गिलगित बल्तिस्तान में पहली हुकूमत बनी थी क्योंकि पीपल्स पार्टी वो पार्टी थी जिसने गिलगित बल्तिस्तान को पहली लेजिस्लेटिव असेंबली दी थी। ठीक है, जब पहली लेजिस्लेटिव असेंबली का क़याम हुआ, ठीक है, आपने जो लेजिस्लेशन की थी उस वजह से आपको वोट मिला था। ताहिरा साहब, आज जो बिजली का जो मामलात हैं, आपकी गवर्नमेंट चूंकि PMLN के बाद PTI आई है तो आपके ऊपर ज्यादा इल्जाम लगाया जाता है। वजह क्या है कि आज इतनी ज्यादा लोड शेडिंग है, सारा कुछ है और आवाम उसी तरह परेशान है और बिजली भी महंगी है? ये आप इल्जाम खान की जो गवर्नमेंट है उनसे पूछिए, इल्जाम तो ये लगाते हैं बड़ी आसानी से। जब मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट गई है 2018 के अंदर, तो आप खुद सोचें, 0 लोड शेडिंग थी। अगर आप अपने कोई कैमरे वाले दे के पब्लिक में भेजे और उनसे पूछा जाए कि जी नवाज शरीफ की गवर्नमेंट में लोड शेडिंग का क्या आलम था, तो वो आपको बताएंगे कि 0 लोड शेडिंग थी। कि जो नवाज शरीफ ने पहली तकरीर में वादा किया था कि हम जब पाकिस्तान से जाएंगे अमन भी होगा, 0 लोड शेडिंग भी होगी और अवाम की तरक्की के मंसूबे भी पाया तकमील तक पहुंचेंगे। पहला मोटरवे बना नवाज शरीफ के दौर में, पहली मेट्रो बस चली नवाज शरीफ के दौर में, पहला मेट्रो स्टेशन बना नवाज शरीफ के दौर में, पावर प्लांट्स लगे नवाज शरीफ के दौर में, सोलर प्लांट्स पहली मरतबा लगे नवाज शरीफ के दौर में। बात यह है कि जब अब लोड शेडिंग हो रही है तो ये लोड शेडिंग तो आजकल के दौर में हो रही है। इससे तो आप खुद सोचें कि जो हमने पावर प्लांट्स लगाए उससे 0 लोड शेडिंग करके पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत यहाँ से अपने इक़्तिदार से अपनी टेन्योर मुकम्मल करके हटी। बात यह है कि जो आज की हुकूमत है, ये उनसे पूछा जाए जो कहते थे कि हमारी तो सरप्लस बिजली बन रही है, वो सरप्लस बिजली आज कहाँ गई? सरप्लस बिजली, और वो कहते, जी हाँ, ये कहते थे कि उसके पैसे भी हमें जो है ना देने पड़ रहे हैं। की बात आप सुने, जहाँ का कोई पुरसाने हाल नहीं, जहाँ कोई मीडिया नहीं, जहाँ कोई लोग जाते नहीं, वहाँ 10-10 घंटे की लोड शेडिंग है। आप अखबार उठा के देखिए, रोज खबर होती है
4 लोग जहाँ पर गर्मी से फलां गांव में, फलां इलाके में, फलां दही एरिया में, और शहरों के अंदर भी बिजली जाती है आती है। ये बिजली की आंख बचौली इस हुकूमत में फिर दोबारा शुरू हुई है। बिल्कुल सही है। नकवी साहब से पूछे, नकवी साहब आप बताएं जी प्लीज। उन्होंने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करके रख दिया है इन 3 सालों के अंदर। कौन सा महकमा है जो तरक्की पजीर है? जिसको देखें उसका बुरा हाल है। आप ऊपर से लेके नीचे तक देखें, कोई एक महकमा है जिसकी कारकर्दगी को ये बताएं। 1.5 करोड़ नौकरियां देने आए थे, 50 लाख घर बनाने आए थे। महंगाई का ये आलम है कि बजट पास होता है 30 जून को, और अगले ही दिन पेट्रोल महंगा होता है, डीजल महंगा होता है, और इसके महंगे होने से रोजमर्रा की अशिया जो है हर एक की कीमतों में फर्क पड़ता है। अब हम उनसे तो रोटी देने के पैसे नहीं, अद्वियात देखे 500% नकवी साहब अगर दे दें जवाब तो जी प्लीज। नकवी साहब देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दोबारा से कहना पड़ेगा, रजीम भी कहना पड़ेगा। बात सारी ये है कि इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कोई नया बिजली घर का सिग्नल साइन नहीं किया इन 3 साल। जितने ये बिजली के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं ये सारे जो हैं नवाज शरीफ के दौर के, जो नई बिजली है, और जो पेमेंट करनी पड़ती है वो उन्हीं कॉन्ट्रैक्ट्स की पेमेंट करनी पड़ रही है जो नवाज शरीफ ने साइन की। इस हुकूमत ने क्या क्या किया पावर सेक्टर में? पहली चीज, इसने LNG का जो कॉन्ट्रैक्ट था उसके अंदर प्राइस इंप्रूव करा ली बाय 30%। वो 13% अबव था, हमने 10% अबव किया। उन्होंने 33 साल का मुआहिदा किया था, हमने उससे बहुत कम अरसे का किया लेकिन ज्यादा क्वांटिटी का किया। हमने सोलर पावर जो इन्होंने 17 सेंट पे की थी वो हमने 6 सेंट से अंडर कर रहे हैं, सारे 5 सेंट पे वो किए, जो अभी लगा देंगे, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट जो साइन किया है उसके अंदर हमने पुरानी IPPs के साथ रीनेगोशिएट करके उनके टैरिफ को लोअर किया। हमने ये सारी चीजें की जिससे बिजली में खर्चा ज्यादा नहीं हो रहा, कम हो रहा। दूसरी चीज, इशू क्या आया है? इशू जो इस वक्त लोड शेडिंग हो रही है उसकी प्राइमरी वजह LNG का वो टर्मिनल है जिसके अंदर एंग्रो ने जो है 1 साल का नोटिस नहीं दिया, और वो एक कंट्रोवर्सी है जिसकी वजह से वो 10 दिन का एक जहाज का हटना और दूसरे के लगने की वजह से गैस की शॉर्टेज हुई। साथ साथ दूसरी शॉर्टेज जो हुई है वो तरबेला डैम में पानी जमा न होने की वजह से 4000 मेगावाट बिजली कम बन रही है तरबेला से। तो ये दोनों चीजें जब कंबाइन हुई कि 6000 मेगावाट LNG और 4000 मेगावाट तरबेला का 10,000 मेगावाट बिजली जब डाउन हुई है सिस्टम में से, तो उसकी वजह से इस पीरियड में लोड शेडिंग। अच्छा नकवी साहब, इसको मिसमैनेजमेंट कहेंगे, क्या कहेंगे? जी देखिए, मैं ये समझता हूँ, इसको आप जो भी कहना चाहें कहिए, जो हकीकत है वो बयान कर दी गई। ठीक है। इसके अंदर मैं समझता हूँ कि एंग्रो का एक बहुत बड़ा किरदार है कि उन्होंने 1 साल का क्यों नोटिस नहीं दिया और उसके बाद लास्ट मोमेंट के ऊपर विद नो ऑप्शन गवर्नमेंट को छोड़ दिया। और जहां तक तरबेला में पानी का ताल्लुक है तो वो मैं तो मैनेज नहीं कर सकता, अल्लाह मियां ने हमारे बहुत अच्छे तरीके से मैनेज। ठीक हो गया, बिल्कुल सही है। अल्लाह ताला इंशाल्लाह पाकिस्तान को अच्छे, ये हमारा पानी रोक सकते हैं। अच्छा एक मसला, एक और मसला है, एक मसला और है। देखिए जरा इनसे पूछ लीजिए कि जब 36,000 मेगावाट बिजली लगाई थी तो कितना का तरसील का निजाम देके छोड़ के गए थे कि उसमें से ट्रांसमिशन कितनी बिजली हो सकती थी। अगर आपने 36,000 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं तो कम से कम आपके सिस्टम के अंदर 33,000 मेगावाट ट्रांसमिट करने की कैपेसिटी होनी चाहिए। जी बिल्कुल सही है। इस वक्त भी हमारे बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अमीर अब्बास साहब, ये जो 1200 से 2300 बिलियन तक सर्कुलर डेट चला गया है और खुद ही नकवी साहब ने कहा है कि हमारे ट्रांसमिशन लाइन के अंदर कैपेसिटी नहीं है, जनरेशन लॉसेज हैं, ये सारी चीजें, तो इसका मतलब है कि 3 साल के अंदर इन पे ऊपर कुछ ना कुछ काम तो होना चाहिए था। पिछली हुकूमतों ने तो जो किया चले गए, चले नहीं गए, वो जीरो लोड शेडिंग करके गए जी, चले नहीं गए, ऐसे जो वादा किया पूरे करके गए। इनकी हुकूमत गा गे गी पे चल रही है, ये होगा, ये हो जाएगा। ठीक है अमीर अब्बास साहब,
इसमें कोई शक नहीं, जैसे तायरा साहबा ने फरमाया कि लोड शेडिंग ऑलमोस्ट शुरू कर गई थी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत, और अब हमें लोड शेडिंग इस साल तो हमें वापस वही 2012-13 का दौर याद आ रहा है, और देहातों के अंदर तो 14 से लेके 18 और 20-20 घंटे तक लोड शेडिंग हो रही है। मैं पंजाब के देही इलाकों की बात कर रहा हूँ। देखिए, 3 चीजें हैं जब आप पावर सेक्टर की बात करते हैं। पहली चीज है पावर जनरेशन, दूसरी चीज है पावर डिस्ट्रीब्यूशन, और तीसरी चीज है कि आपने जो बिजली या तवानाई बेची है उसके आपने अखराजात वसूल सारिफीन से वसूली करनी। तो ये तीनों जो मराहल हैं, इन तीनों मराहल पे काम करने की जरूरत थी। लेकिन माजी में जो मंसूबे लगे, 3 तरह के मंसूबे होते हैं, एक है शॉर्ट टर्म, एक है मिड टर्म, एक है लॉन्ग टर्म। जो मुस्लिम लीग नून ने मंसूबे लगाए वो शॉर्ट टर्म मंसूबे थे। उन्होंने फौरी तौर पे 2 से 3 साल के अंदर जो बिजली का बहरान था उसको खत्म किया, बिजली वाफिर दस्तयाब कर दी, लोगों ने उनके लिए तालियां बजा दी और उनकी अप्रूवल रेटिंग हाई हो गई। ये शॉर्ट टर्म मंसूबा तो था, लेकिन जो मिड टर्म और लॉन्ग टर्म मंसूबे थे उसमें नून लीग ने इतना काम नहीं किया। यानी आप देख लें, दयामिर भाषा डैम, जो बड़े डैम 2-3 बनते थे उनमें से एक दयामिर भाषा डैम, दयामिर भाषा डैम का काम पीपल्स पार्टी के दौर में भी शुरू नहीं हुआ, मुस्लिम लीग नून के दौर में भी शुरू नहीं हुआ। हाँ, ये जरूर था कि इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा काम, कभी जमीन खरीदी जा रही है, कभी कोई डिस्प्यूट्स आ गए हैं, कभी कोई और रुकावट है, वो काम चलते रहे। लेकिन इन 10 सालों में और उससे पहले मुशर्रफ साहब के जमाने में भी काम शुरू नहीं हुआ। अच्छा, परवेज मुशर्रफ साइट पर गए, पीपल्स पार्टी भी उस साइट पे गई और नून लीग भी उस साइट पर गई, लेकिन काम शुरू नहीं हुआ। तो ये जो लॉन्ग टर्म मंसूबे थे उनके ऊपर काम नहीं हुआ। अभी जो इमरान खान साहब ने कहा है, वो कह रहे हैं कि जी ये जो डेकेड है इसको वो कह रहे हैं डेकेड ऑफ डैम्स होगी। अमीर अब्बास साहब, मुझे अगर इजाजत दें मैं एक ब्रेक ले लूं, वापस फिर आपकी तरफ ही आ जाता हूं। ब्रेक के बाद नाज़रीन एक ब्रेक और लेते हैं और वापस आगे प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू करेंगे। अब टाइम मेरे पास बहुत कम है। मुअज़्ज़ज़ मेहमानान से ये दरख्वास्त है कि क्विकली आपने जवाब देना है। अमीर अब्बास साहब, सबसे पहले आपसे, नैब ये कहता है कि हमने तकरीबन 500 अरब से ज्यादा रिकवरी की है 3 सालों में। डू यू बिलीव दिस एंड डू यू थिंक दिस मनी हैज बीन डिपॉजिटेड इन द नेशनल कैटी? देखिए, मेरे पास तो इसका कुछ जारी बात है, ऐसा तो कोई सबूत नहीं है कि मैं नैब के इस दावे को रद्द करूं। और ये दावा नैब एक बार नहीं, नैब के चेयरमैन, यानी ये निचली सतह पे नहीं, ये नैब के चेयरमैन की जानिब से कई बार दावा किया गया है। मेरे लिए इसमें कोई हैरत की बात नहीं है कि इन्होंने 500 या 600 या 300 जितने अरब भी रिकवर किए। मेरे लिए इसमें अहम बात यह है वहीद साहब कि ये पैसा जिन लोगों से रिकवर किया गया है उन लोगों का प्रोफाइल क्या है। जो यूनानी कहावत है कि फिश रॉट्स फ्रॉम इट्स हेड, मछली अपने सर से गलना शुरू करती है। हमारे लिए अहम सवाल, बल्कि दुनिया की हर जमहूरियत पे अहम सवाल होता है कि जो लोग बरसर इक़्तिदार हैं या रहे हैं, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी है, चाहे वो सियासतदान है, चाहे वो फौजी ब्यूरोक्रेसी है, जज हैं, जो भी तबका कहीं ना कहीं ताकत का शराकतदार रहा है या आज है, उसका एहतसाब और उससे सवाल किया जाए उसकी असासों का। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। अमीर अब्बास साहब, ताहिरा औरंगजेब साहब, प्लीज योर कमेंट। मैं इस बात से इत्तेफाक इसलिए करूंगी कि मुझे ये बताया जाए कि चेयरमैन नैब ने जो अरबों रुपए उन्होंने दावा किया है हमने ये वसूल किए हैं, तो बराए मेहरबानी एक काम और नेकी का करें कि उन लोगों के नाम शाया कर दें मीडिया के ऊपर, जिन लोगों से कितनी रकम वसूल हुई है। और जो जो लोग हैं, चाहे वो पॉलिटिशियन हैं, चाहे वो जर्नल्स हैं, चाहे वो जजेस हैं, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हैं, उन सारों का चारों कैटेगरीज इक्तिदार में शरीक रहती हैं। इन चारों में से खुल के बता दें मीडिया को कि किन से कितनी रकम वसूल की। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल ठीक है। सहर कामरान साहबा जी, मैं तो ये भी कहूँगी कि वो रकम कितनी वसूल की और किस अकाउंट में रखी गई, शफाफियत तो फिर पूरी होनी चाहिए, क्योंकि नैब चेयरमैन तो कॉम्प्रोमाइज है एक वीडियो स्कैंडल के ऊपर। वो भी आजकल बयानात देते हैं, तो बयानात के बजाय आई थिंक फैक्ट्स एंड फिगर्स ये पब्लिक का हक है
और दूसरी तरफ जो एक तरफ फेडरल रूल्स कॉम्प्रोमाइज हो रहे हैं, एक तरफ हम ये देख रहे हैं कि पब्लिक सेक्टर्स को आप इम्यूनिटी दे रहे हैं, तो वो उसको तमाम चीजों में शफाफियत चाहिए ना, कि नैब की भी हमें छुरी एक तरफ चलती हुई नजर आ रही है, दूसरी तरफ नहीं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। नकवी साहब, नकवी साहब, ये एक मुझे काइंडली ये बता दें, क्योंकि आप लोग एहतसाब के नारे के ऊपर भी आए थे, बाकी भी चीजें थी इलेक्शन के अंदर, ये कामयाबी आप लोगों की है या नैब की है? क्योंकि नैब इज एन इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन। मेरे ख्याल से इसके अंदर ट्रांसपेरेंसी की जो है नाकामी है, इसके मैं तो इस प्ली बार्गेन के हूं ही सख्त खिलाफ। मैं समझता हूं ये कोई बात नहीं हुई कि एक शख्स ने 300 करोड़ की चोरी की, उससे 100 करोड़ रिसीव किए और उसके बाद छोड़ दिया कि 200 करोड़ एंजॉय करो। ना वो बदनाम हुआ, ना वो डिस्क्वालीफाई हुआ, वो आधा इलेक्शन भी लड़ सकता है। ये कौन सा कानून है? मैं तो इसके पूरे खिलाफ हूँ। जहां तक शफाफियत की बात है, ये किसी की जाती जेब में नहीं जा सकते। ये एक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का अकाउंट होगा, जिसके अंदर स्टेट बैंक में वो अकाउंट होगा, उस स्टेट बैंक के अकाउंट में गए होंगे, क्योंकि ये फेडरल गवर्नमेंट का इदारा है, वो पेनल्टीज जो है वो अदर इनकम ऑफ द गवर्नमेंट के अंदर मिल जाएगी और उसकी ट्रेसेबिलिटी पूरी मौजूद होगी। ये क्योंकि सवाल मुझे पता नहीं था कि आज डिस्कस हो रहा है, वरना ये मैं मालूमात लेके आ जाता। मैंने इतनी इन डेप्थ स्टडी नहीं की है, बट आई डोंट डाउट कि ये पैसे किसी शख्स की जेब में किसी दौर में भी गए, हमारे दौर में नहीं, किसी दौर में। लेकिन ये प्ली बार्गेन का मंसूरुल हक का देख लीजिए, नाम तो आने ही चाहिए। अभी आया है कि 33 अरब रुपए आसिफ जरदारी और उनके क्रोनीज से लिए गए। जो फवाद चौधरी ने ट्वीट किया, ये जो ना मीडिया ट्रायल, ये नहीं होना चाहिए। अगर लिए हैं तो फिर फैक्ट को सामने लाएं। बिल्कुल सबके नाम सामने आने चाहिए। चारों मेहमानों का शुक्रिया जी, प्रोग्राम को खत्म हुआ चाहता है। चारों मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।